Activity ratios. Activity ratios are also known as performance ratios or turnover ratios. These are expressed in times and are mostly based on revenue from operations or cost of revenue from operations. These ratios generally measures the efficiency or performance of the enterprise, and hence the general rule, higher the better, that is, the more the better, but up to a certain limit. Let us now understand the concept of these ratios through the most practical and interesting examples. Suppose we are the dealers of Damosas. We purchase each unit of Damosa at rupees 10 and sell it at rupees 12 per unit. What is the cost per unit? 10 and selling price 12. This is an accounting year. Let us assume that we have purchased first Damosa year for the purpose of resale, and it took 4 months to complete the sale. तो ये डमोसा ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने टाइम तक रहा? 4 मंथ्स. 4 मंथ्स के बाद बिका. नाउ ऑन दिस डेट वी परचेज द सेकेंड डमोसा अगेन एट रुपीज 10. अगेन इट टुक ऑन एन एवरेज 4 मंथ्स टू सेल दैट. 4 महीने लग गए, तो 4 महीने तक वो स्टॉक में हमारे पास रहा. तो आया यहाँ पे कितने महीने तक हमारे पास रहा? 4 मंथ्स मेहमान बन के, और फिर बिक गया यहाँ पे. अगेन यहाँ पे थर्ड डमोसा हमने खरीदा एट रुपीज 10. इसको भी बेचने की कोशिश करी एंड इट टुक 4 मंथ्स टू मेक द सेल. तो ये भी ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने मंथ्स तक रहा? 4 मंथ्स. हाउ मैनी टाइम्स दिस एक्टिविटी टुक प्लेस? ये जो हमने खरीदा, फिर स्टॉक में रहा, बिका, फिर खरीदा, फिर स्टॉक में रहा, बिका. हाउ मैनी टाइम्स दिस एक्टिविटी टुक प्लेस? एज वी कैन सी थ्रू डिफरेंट कलर्स, दिस एक्टिविटी टुक प्लेस 3 times ड्यूरिंग द ईयर. 3 times. दिस इज द टर्नओवर. 3 times ये टर्नओवर हुआ. 3 times ये एक्टिविटी रिपीट हुई. 12 मंथ्स में 3 times. तो एक एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगता है? 4 मंथ्स. सिंपल है ना? What is the opening stock of Damosa? 1 unit of Damosa costing 10 each. 10. What is the closing stock of Damosa? 1 unit costing rupees 10 each. Total 10. What will the average stock of inventory? 10 plus 10 divided by 2 will give us 10. How many Damosas were sold during the entire period? 3 Damosas, right? And what was the total cost of Damosas sold? I'm not asking the selling price or total sales. I'm just asking what was the total cost of Damosas sold. There were 3 Damosas sold and each costing 10. So total cost of Damosas sold, that is cost of goods sold, 30. This is also known as cost of revenue from operations. Inventory turnover ratio. The formula for inventory turnover ratio is cost of revenue from operations divided by average inventory. Cost of revenue from operations divided by average inventory. What was the total cost of revenue from operation? To put it simply, what was the total cost of goods sold? 30. And average inventory 10. 30 divided by 10 will give us 3 times. इसको तो हमने ऐसे ही फील कर लिया था. क्या फॉर्मूले की ज़रूरत है? हाउ मैनी टाइम दिस एक्टिविटी बाइंग सेलिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर? 3 times ड्यूरिंग द ईयर. सो दिस इज द टर्नओवर. 3 times. नेक्स्ट, एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. व्हाट इज़ द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड? किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है. बताइए, ऑन एन एवरेज एक डमोसा आता है तो कितने टाइम के बाद बिकता है? ऑन एन एवरेज 4 months. यही हम कैलकुलेट करेंगे. एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज total period divided by turnover ratio. Total period, if we want to calculate in months, we write 12. If we want to calculate it in days, we write 365 here. So
In this case, we are calculating in months. So 12 months divided by turnover ratio. Turnover ratio was 3 times. तो 12 divided by 3, 4 months. ये 4 months क्या है? बड़ा सिंपल, हमने फील कर लिया है. ऑन एन एवरेज एक बार स्टॉक हमारे पास आता है तो कितने टाइम तक हमारा मेहमान बन के रहता है. ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने टाइम तक रहता है? 4 months. Inventory turnover ratio. The formula is cost of revenue from operations divided by average inventory. पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, why we are considering the cost here, not the sales? The reason, हमें ये देखना है on an average inventory हमारे पास कितने टाइम तक रहता है, कितने टाइम तक वो स्टॉक में रहता है. तो जब तक स्टॉक में रहेगा तब तक तो उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होगा, देयरफॉर हम कॉस्ट पे लेते हैं. तो देखिए बेस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का बेस सेम होना चाहिए. तो एवरेज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो न्यूमरेटर भी कॉस्ट पे ही वैल्यू करना पड़ेगा, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा. देयरफॉर वी कंसिडर द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सिंपली हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. या cost of revenue from operation can also be calculated as net sales or net revenue from operations minus gross profit. Gross profit आपको amount wise दिया जा सकता है या percentage. If you are given the gross profit ratio, suppose 30%, तो 30% of what? Cost or sales? If nothing is mentioned, you must assume that it is on sales. The reason is there is a gross profit ratio and that gross profit ratio is calculated taking sales as base. Therefore, if it is only mentioned that gross profit ratio is 30%, 30% of what is not mentioned, you have to assume that 30% of sales. And in case gross profit ratio is given as a percentage of cost, we need to convert it into percentage of sales by the trick or conceptual method. Second important point, if opening and closing stock is not given, that is either opening or closing is not given. Suppose opening is given as 20,000, closing is not given, then assume both are same. That is जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग भी हो जाएगा 20, 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज भी वही हो जाएगा. तो ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई एक ही दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा दूसरा वाला भी वही था. थर्ड, रेक्टिफाई द एरर्स इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. अगर क्वेश्चन में किसी में इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ हुई है पास्ट में, तो उसको ठीक करना पड़ेगा और जो सही वैल्यूज है उसी को कंसिडर करते हुए आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 times ऑफ सम आइटम एंड मोर देन 3 times. एग्जाम्पल, सपोज ओपनिंग स्टॉक इज 20,000, यू हैव बीन गिवन दैट ओपनिंग स्टॉक इज 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक इज स्टेटेड एज 3 times ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 3 times ऑफ ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक हैपेंस टू बी 20,000, 20,000 into 3 will make 60,000. But in case if it is given that if closing stock is 3 times more than opening stock, 3 times more than opening stock, second case, then closing stock will be 3 times of 20,000 will make 60,000. 60,000 ज़्यादा है, 20,000 से और 60,000 ज़्यादा है, तो 20 plus 60 will make 80,000. Now let us understand the concept of trade receivables turnover ratio. Suppose we are the dealers of Damosa again. We purchase each unit of Damosa at rupees 10 and sell it at rupees 12 per unit. We provide credit period of 6 months to a customer. तो अगर कोई कस्टमर आएगा, आज डमोसा लेके जाएगा, तो वो हमें पेमेंट करेगा 6 months के बाद. ये क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट टर्म्स. वी सोल्ड 1 unit ऑफ डमोसा टू चमन. तो बताइए यहाँ पे अगर बेचा तो पैसे हमें कब मिलेंगे? 6 months के बाद. यहाँ पे सपोज 6 months यहाँ ओवर हो रहे हैं, यहाँ पे पैसे मिल गए, वी रियलाइज द अमाउंट. अब वो पैसे से हमने दूसरा डमोसा खरीदा और फिर दूसरा डमोसा किसी और चमन को या उसी चमन को बेच दिया, राइट? तो वो दूसरा चमन पैसे कब देगा? 6 months के बाद. हाउ मैनी टाइम्स दिस एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट सेल
and collection from debtors, credit sale and collection from debtors. How many times this activity took place during the year? So your answer is 2 times, sir. This is the first time and this is the second time. Times, right? This is the activity ratio. This is activity. Activity took place 2 times. This is the turnover ratio. तो साल में 2 बार ऐसा हुआ, तो ऑन एन एवरेज एक एक्टिविटी पूरा होने में, एक एक्टिविटी कौन सी, क्रेडिट पे बेचा, पैसे मिले, ऑन एन एवरेज एक एक्टिविटी को पूरा, एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? अगेन सर बड़ा सिंपल, साल में 2 एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो एक एक्टिविटी में तो 6 मंथ्स का ही टाइम लगेगा. तो ऑन एन एवरेज हम बेचते हैं यहाँ पे, कलेक्ट पैसा होता है यहाँ पे, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 6 मंथ्स. अब यही चीज़ें हमें फॉर्मूले से डिराइव करनी है. ये तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है. ओपनिंग रिसीवेबल 12, क्लोजिंग रिसीवेबल्स, क्लोजिंग डेटर्स 12, एवरेज रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. तो 12 plus 12 divided by 2, 12. What was the quantity of Damosa sold during the year? During the year we sold 2 Damosas, blue and green, 2 Damosas. And what was the selling price of that? 12. And we have made the credit sales, right? So total credit sales will be 24. Now applying the formula. Receivables turnover ratio, trade receivables turnover ratio is credit revenue from operations. Credit revenue from operation means credit sales 24 divided by average inventory. Average inventory was 12. 24 divided by 12, 2 times. अब ये 2 times हमने वैसे ही ऑब्जर्व किया. This activity happened, cut. This activity cut. This activity took place 2 times. वो तो हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया था. एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, या एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताएगा? हम एक बार हम किसी को गुड्स बेचते तो ऑन एन एवरेज कितने टाइम के बाद हमें पैसे कलेक्ट होते हैं. तो अगेन फील करते ही देख सकते हैं, यहाँ पे बेचा, कलेक्ट होने में 6 मंथ्स का टाइम लगता है. क्रेडिट पीरियड वॉज 6 मंथ्स. ये हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल पीरियड मंथ्स में निकालना है तो 12 लेंगे, डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो वॉज 2 टाइम्स. तो 12 डिवाइड बाय 2 विल मेक 6 मंथ्स. मतलब एक साइकिल चलता है 6 मंथ्स, एक चक्कर चलाने में 6 महीने का टाइम. अमिताभ. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, द फॉर्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स credit sales, net credit sales, and average trade receivables. Trade receivables is a wider term that includes both debtors, trade debtors, and bills receivables. And credit revenue from operations. Credit revenue from operation means credit sales. There is a consistency between numerator and denominator because receivables or debtors are valued at sale price. There is a consistency between numerator and denominator. यहाँ डेटर्स हैं तो डेटर तो बनते हैं क्रेडिट सेल्स से ही, तो इधर क्रेडिट सेल्स लिया है. सपोज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया हो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमें यहाँ पे डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. करंट रेशियो में हम इसको डिडक्ट करते थे बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट टू बी रियलाइज्ड. कितना रियलाइज होगा, कितना अमाउंट कलेक्ट होगा. हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है, हमें तो देखना है वो एक्टिविटी कितने बार हो रही है और एक एक्टिविटी होने में कितना टाइम लगता है. देयरफॉर डू नॉट डिडक्ट एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू डेटर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डेटर्स. और अगर ऑलरेडी डिडक्ट होके बताया गया है आपको फिगर, तो फिर उसमें एड बैक करना पड़ेगा. ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, इसका कॉन्सेप्ट को आप फील कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के जैसे. बस फ़र्क ये है, ट्रेड रिसीवेबल में हमें पैसे मिल रहे थे, हम कलेक्ट कर रहे थे. पेएबल्स में हम पे करेंगे. कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही. न्यूमरेटर में उधर रखते थे क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे रखेंगे नेट क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज क्यों? क्योंकि ट्रेड पेएबल्स होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, और क्रेडिटर्स बनेंगे जब हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे. देयरफॉर न्यूमरेटर में आता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. हियर ट्रेड पेएबल्स इज ट्रेड क्रेडिटर्स
प्लस बिल्स पेएबल। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कि कितने बार हमने क्रेडिट पे परचेस किया, पेमेंट किया, फिर परचेस किया, फिर पेमेंट किया, फिर परचेस किया, फिर पेमेंट किया, ऐसा कितने बार हुआ ये एक्टिविटी। एंड एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना हो तो टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम नेट वर्किंग कैपिटल भी होता है, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, न्यूमरेटर में रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिंपली टोटल सेल्स, नेट सेल्स, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इन केस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया हो तो वी कैन टेक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सिंपली सेल्स लेना है न्यूमरेटर में, इनके सेल्स नहीं दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं, बट सेल्स पहले ट्राई कीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल जो इससे पहले जो टर्नओवर रेशियोज देखे उसी के ऊपर बेस्ड है।